Hello, students of class 10th. Very soon going to become students of class 11th. छुट्टियां काफ़ी लंबी हो गई हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि मैथमेटिक्स हमें जो आने वाली क्लास 11th में जो कई लोग कहते हैं बहुत टफ है, रादर बहुत इजी है ये. इट्स ओनली इजी बिकॉज you have to do lot of practice in that, and after practice it makes everything easy. So I'll be starting with one of the important topic which is also a bridge जो class 10 से लेके 11th class के अंदर common चलते हैं. कुछ topics हैं हमारे पास like coordinate geometry is there, we are having quadratic equation, then we are having a bit of statistics. But there is one common topic which is trigonometry, which has started in class 10th, now it is also there in class 11th. So since this is considered as very important topic for class 11th and 12th both, so I am starting with this particular chapter only, where we will be going part by part. I will not be going to take complete topic, I will be going to take subtopics in that, ताकि हमारी trigonometry पे पकड़ strong हो सके. तो चलिए इसको start करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जो हम लोग करते थे, जनरली वी यूज्ड टू टेक इट फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल. तो आज के लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ एंगल्स की ही बात करेंगे. सो पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज एन एंगल. जनरली हम लोग एंगल की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सर एंगल तो प्रोट्रैक्टर से बनाते हैं, स्केल से बनाते हैं, बट वी आर नॉट हैविंग एग्जैक्ट डेफिनेशन. सो एंगल is when we take a ray, it is starting from 0 O, I'm not sorry, is O to one point A. If there is a ray given to you, at its initial point, if this ray rotates on this particular point, and let us take the other position B, that is from point A to point B. I am using two co-initial rays where O point is common, then we can say that one ray which is like this, it is rotating on the other ray. So it is ending here, it can end here also, it can end here also. So this particular movement of this ray, that is the rotation, this rotation is considered as angle. So what is an angle? Angle is defined as the rotation of a ray over another ray, where this particular ray, since it is not moving, so I'll be writing this one as initial ray and this is the terminal ray. So terminal जैसे हमें पता है initial यानी शुरुआत, terminal यानी कि end, तो नाम भी ऐसा ही लिखा करते थे, A से शुरू हुआ B पे खत्म हुआ, and we used to denote this particular angle as angle AOB. तो यहाँ पे angle is defined as the rotation. More the rotation, larger will be the angle. And if I take more rotation, let us take the ray is OA to one more point OB. Let us take it is moving to C. Let us take again it is moving to point D. तो कंपैरेटिवली हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये एंगल सबसे छोटा है, उसके बाद ये वाला एंगल हुआ, उसके बाद ये बड़ा वाला एंगल है. तो एंगल का मेजरमेंट की जब बात करते हैं, मोर द रोटेशन मोर विल बी द एंगल. सो यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं कि रोटेशन, लेस रोटेशन स्मॉलर एंगल, मोर रोटेशन ग्रेटर एंगल, मोर रोटेशन ग्रेटर एंगल. सो हियर वी विल बी गोइंग टू टेक द अमाउंट ऑफ रोटेशन. If I say about amount of rotation, that is known as measure of angle. So there are two phases. What is an angle? और उसको measure कैसे किया जाता है? तो measure करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे amount of rotation की बात कर रहे हैं. अब जब हमने यहाँ पे word लिया है rotation, तो dear student, on a plane means x axis और y axis वाले एक plane की बात कर रहा हूं मैं. इसमें rotation दो तरीके से consider की जाती है. One is if I go, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हमारे घरों में जो है वो घड़ियां दिखी होती हैं, I take analog clock, where when we take anti clockwise, घड़ी उल्टा घूमने वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर हम लोग ऐसा रोटेशन ले रहे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज है, विद दिस एरो मार्क आई एम इंडिकेटिंग दिस
is considered पॉजिटिव एंगल। और यहां पे हम लोग एक ग्रीक लेटर यूज में लेंगे। ग्रीक लेटर बहुत सारे हैं, अल्फा बीटा गामा। यहां पे मैं अभी टाइम बिंग यूज कर रहा हूं थीटा। लेट अस टेक द एंगल एज थीटा एंड देयर विल बी, नाउ दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड देयर विल बी अनदर रोटेशन जो घड़ी के जैसे चलेगी, क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं इसको हम लोग। तो यहां मान लीजिए हमारे पास था बी पॉइंट पहुंच गया, एक यहां पॉइंट है सी, तो घूम के इधर से भी आ सकते थे, बट अभी मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। सो दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज। सो दिस एंगल इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव एंगल। देयर आर साइन कन्वेंशंस, तो ये वो दो साइन कन्वेंशंस है हमारे पास। इसको हम लोग माइनस थीटा लिख देते हैं। So this is what we can say when we are having anti-clockwise rotation, then angle is positive. हम बात कर रहे हैं sin of angle, and when it is clockwise rotation, this angle is negative. So these are two important things. यानी अब क्लास 10th से 11th में आएंगे तो थोड़ा तो चेंजेस हो गई। उसमें से पहला चेंज तो ये रहा कि हमारे एंगल नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव कैसे होंगे? जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा एंगल इज पॉजिटिव, जब हमारा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो नेगेटिव एंगल आएगा हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे हमने दो तीन चीजें देखी हैं, एक एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट, उसका मेजर करेंगे, और उसकी रोटेशन। यानी हम जो बात कर रहे थे, हम ये सब चीजें किसमें देखते हैं? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे हम लोग बात करते हैं वेट की, हम लोग मास की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो वैसे ही ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर भी किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा फिजिक्स टच लेते हैं इसके अंदर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो n इंटू यू में लिखी जाती है। यानी अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट कितनी है या वेट कितना है, तो इफ आई से दैट द हाइट इट इज 6.2, तो व्हाट 6.2 kg? नो, इट इज 6.2 फीट्स कह सकते हैं हम लोग। 185 और 186 सेंटीमीटर आएगा। तो व्हेन वी से समथिंग, इफ आई से द एज लाइक 43 इयर्स या 54 centimeter, so there is a numerical quantity, and after that the important part is there which is known as unit. Unit नहीं है तो हम measurement नहीं कर पाएंगे। So here I am going to take the unit, that is basically we are dealing with the amount of rotation. अब amount of rotation की बात करें तो जब तक हमारे पास unit नहीं है, we cannot find the physical quantity, कितनी है वो, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। So the next topic which I am taking here, these are the important parts, that is anti-clockwise and clockwise rotation. Amount of rotation is there. So for measuring the angle, we have to take care about unit. So for measuring the angle, we should have a unit system. So basically we are having three unit systems. One is the old English system used by the Britishers. Then the second one is French system. The third one is circular, the latest one. So we are taking the first system, जिसका असली नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। This is old English system. So I am just using the word English. ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में क्या था? तो पहले एंगल कैसे मेजर करते थे? फॉर दैट आई एम जस्ट टेकिंग ऑन अ पेपर, व्हेन यू फोल्ड अ क्रीज, दिस इज नोन एज अ सिंपल एंगल, जिसको हम लोग प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं, स्ट्रिम्पल लाइन कहते हैं, 180। तो फर्स्ट एंगल जो हमारे पास आता है वो होता है, जैसे हमने पेपर को फोल्ड किया तो वी आर गेटिंग वन राइट एंगल। So this is the right angle which is used to measure the angles. Here if I put somewhere, we can just check whether it is more than a right angle or less than a right angle. So the first system, what they have done, they have taken a right angle and like this and they have done 90 parts of that. So how many divisions are taken? 90, means one right angle
इज डिवाइडेड इनटू 90 पार्ट्स, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। सो दिस इज डिनोटेड बाय 90 डिग्री। यानी हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल। अब ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पे 1 राइट एंगल इज रिटन एज 90 डिग्री। फर्दर सब डिवीजन, अब हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए इतना छोटा सा है ये 1 डिग्री, जैसे ही हम इस एरो मार्क को आगे लेके जाएंगे ये जो बीच का गैप है वो और वाइड हो जाएगा। यानी फर्दर दे हैव डिवाइडेड 1 डिग्री इनटू 60 सब पार्ट्स, दे आर नोन एज 60 मिनट्स। इट इज डिनोटेड बाय 60 अप्राइम, जिसको हम लोग एपोस्ट्रोफी के नाम से भी लिखते हैं। तो इन दिस वे वी कैन राइट 60 मिनट्स। फर्दर फॉर मोर एक्यूरेसी, और एक्यूरेट निकालने के लिए इन्होंने 1 मिनट के भी आगे 60 डिविजन्स किए, जिसको कहा गया 60 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड्स को लिखने का तरीका होता था डबल प्राइम, डबल एपोस्ट्रोफी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में एक एंगल के सब डिविजन्स देखे। एक तरीका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं कई बारी 5 पॉइंट से, इफ आई एम टेकिंग द एंगल एज 9/2, हमारी पुरानी क्लास में आदत है कि हम इसको लिख देते थे 4.5 डिग्री। बेटा 4.5 डिग्री कभी नहीं होता, पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन के पार्ट है, तो एंगल के अंदर कभी डेसिमल नहीं आता। तो हम लोगों का ये लिखना गलत था। हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको एक नॉर्मल डिवीजन, जैसे 9 को डिवाइड कर दें 2 से, ये हो जाएगा 4 × 8, लेफ्ट विद 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिस इज रिटन एज 4.5 डिग्री। सो वी राइट दिस वन एज 4 डिग्री। ये जो हाफ है ये डिग्री नहीं है, तो हर डिग्री को हम लोग 60 में ब्रेक करते हैं, तो वी मल्टीप्लाई बाय 60 और ये हमारा आ जाएगा मिनट्स में। कितना हो गया? 30। तो हम ये 9/2 डिग्री नहीं लिखते, हम लिखते हैं 4 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो ये है एंगल को लिखने का तरीका। ओल्ड इंग्लिश सिस्टम, पुराने अंग्रेजों के द्वारा जो सिस्टम यूज किया गया था उसमें यूज किया जाता है ये। और आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 11/8 डिग्री। हाउ मच विल इट बी दिस? लेट अस टेक 21/8। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप करके देखिए कितना बनेगा। अगर 8 से डिवाइड करें तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ये 2 × 16, देन 4 and 1 5, सो इट इज 5/8। अब ये कैसे आया? बड़ा आसान तरीका होता है, डिवाइड कर दीजिए 8 को, 2 × 16, लेफ्ट विद 5, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया, ये क्या बन गया? 2 डिग्री 5/8, क्योंकि पूरी डिग्री नहीं है और 1 डिग्री के सब डिवीजन होते हैं 60, मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट्स में आ जाएगा। इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। सो इट इज 4, 30, 2, 15, this becomes 2 degree and this is how much? 75. 15 5 is 75/2 minute. This is further written as how much? We write 3. Then if you divide it, mixed fraction 75, you divide by 2, you will get 6 and 1 15, then we get 7, it is 14 1. So this is 37 1/2, 37.5. So this becomes minute. So we write 2 degree 37 minutes and again half, which is not a complete minute, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 2 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकंड्स। तो ये हमारा एक्चुअल तरीका है जो इस ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में लिया गया था, टू राइट द एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग टू टेक द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। थैंक यू।